Okay, ocean pollution. Most of the water content, almost 70 to 80% water is present in ocean. Okay, how ocean pollution is going in oceans? Question number one, how much pollution can ocean tolerate? Because it is one question. Suppose अगर हम सबसे पहली चीज देख लेते हैं कि जितनी भी पॉल्यूशन ग्लोब के ऊपर है या टेरेस्ट्रियल रीजन में है, हाउ मच पॉल्यूशन इज प्रेजेंट ऑन टेरेस्ट्रियल रीजन at large, and most proportion of this pollution is going to ocean through rivers, streams, and surface runoff water. So there should be a capacity that how much pollution ocean can tolerate, because most of the pollutants are going to the ocean. And another phenomenon in oceans that some pollutants degrade and dilute in ocean. The concentration of pollutants which is very less on terrestrial environment, when this is going into the ocean, it is concentration is going to be dilute, and there will be no impact of that pollutant at its least concentration. When we are diluting anything, any pollutant, any chemical, at its least dilution, it has no impact on any living organism or any ecological system. We should believe on it. Therefore, most of the pollutants from surface of the earth, from terrestrial region, when these are going into ocean, the concentration of these pollutants is going to dilute, and the concentration is negligible now. No, they have no impact in ocean population. तो इस बात का हमें यकीन करना होगा कि जमीन के ऊपर जो कम मकदार में ज्यादा टॉक्सिक एलिमेंट्स मौजूद हैं, केमिकल्स मौजूद हैं, जब वो समंदर में चले जाते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाते हैं, और डाइल्यूशन की वजह से उनका वो इम्पैक्ट नहीं रहता जिस जो इम्पैक्ट उनका कंसंट्रेटेड फॉर्म में था. ओशियन डंपिंग कंट्रोवर्सीज, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं वो सब के सब एट लास्ट दिस ऑल थिंग्स आर गोइंग टू द ओशियन. सो इफ यू विल सी हियर, दिस इज द ओशियन. If you will see here, this is ocean, from where pollution sources and how ocean water can be polluted. We have to make a list of the pollutants of ocean, sources of ocean pollution. Sources of ocean pollution. Number one क्या है? नंबर वन ये लिख देते हैं हम, इंडस्ट्री. इंडस्ट्री इंडस्ट्री से क्या क्या चीजें आती हैं ओशियन में? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स,
नंबर वन, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से क्या क्या चीजें ओशियन में जाती हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स फ्रॉम ऑटोज एंड स्मोक स्टेक्स, टॉक्सिक chemicals. So industry is the first source. First one is industry, autos and smoke states, toxic chemicals, heavy metals, in effluent flow into wells and streams. Industry से निकलने वाला जितना भी waste material है, that contain chemicals, that contain heavy metals, that contain organic materials and many type of pollutants. And what happens is that waste material is going to ocean through rivers, through streams and estuarian regions. So what happens? All pollutants, nitrogen, oxides, and other things, those are going to the ocean. नंबर टू में अगर हम देखते हैं तो cities, metropolitan cities which have more population, वहां से भी एक huge concentration of heavy metals, toxic metals, and many more organic materials, detergents, acids, organic and inorganic pollutants जो घरों से निकलता है वो भी आखिरकार at least it is going to ocean. फर्स्ट एस्चुरियन रीजन में दाखिल होगा और उसके बाद ग्रेजुअली वो ओशियंस में दाखिल होंगे. सिटी से क्या निकलता है? टॉक्सिक मेटल्स एंड ऑयल्स फ्रॉम स्ट्रीट्स एंड पार्किंग लॉट्स, pollute water, sewage and nitrogen and phosphorus. ये जितनी भी चीजें हैं, these are coming out from cities. और कहाँ जाते हैं? जितना भी शहरों से गंद मटीरियल वगैरह निकलता है, इट इज गोइंग टू ओशियन. उसके बाद अर्बन स्प्रॉल, जो दही इलाके जहां पर आबादी बढ़ती है, अर्बन स्प्रॉल, उसमें से बैक्टीरिया, वायरसेस फ्रॉम सेवेज वाटर एंड सेप्टिक टैंक्स, contaminates shellfish beds and closed beach. अर्बन स्प्रॉल से क्या क्या चीजें निकल रही हैं? बैक्टीरिया एंड वायरसेस फ्रॉम सेवर्स, अर्बन स्प्रॉल में बैक्टीरिया एंड वायरसेस फ्रॉम सेवर,
Okay. Bacteria and viruses from sewers and septic tanks contaminate selfish beds and closed bins. दरिया समंदर के किनारे जो भी छोटी बस्तियां आबाद हैं या अर्बन स्प्राल वहां पर मौजूद है, वहां उनके सेवर से निकलने वाला, सेवरेज से निकलने वाले बैक्टीरिया, वायरसेस और जो सेप्टिक टैंक से भी निकलते हैं, करीब का जो साहिली इलाका है उसको वो डिस्टर्ब कर देते हैं। यहाँ से जो भी मटीरियल निकलेगा, सेल्फ वेट एंड क्लोज भी रन ऑफ ऑफ फर्टिलाइजर, जो इन्होंने अपनी जमीनों के ऊपर जो फर्टिलाइजर वगैरह कास्ट किए हैं, वो भी बारिश के पानी के साथ करीबी समंदर में पहुंच जाता है। एंड नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट, ये चीजें भी समंदर के सरफेस के ऊपर जितना भी टॉक्सिक मटेरियल जनरेट हो रहा है, एट द एंड इट मस्ट हैव टू रीच टू द ओशन। और थर्ड जो आ रहा है, थर्ड फोर्थ, कंस्ट्रक्शन साइट्स sediments are washed into waterways, choking fish and plants, clouding water and blocking sunlight. इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उसमें सैंड का भी काम हो रहा होता है, सीमेंट का भी, सिल्ट का भी, ग्रेवल का भी, वो सारी चीजें कहाँ पर चली जाती हैं, वो भी समंदर के पास, समंदर में ही ग्रेजुअली पहुंच जाती हैं। ठीक है। और फार्म रन ऑफ ऑफ पेस्टिसाइड, खेतों में हम जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, मैन्योर जो इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, एक टॉक्सिक एंड एक्सेस नाइट्रोजन एंड फास्फोरस टू द ओशन, और उस इलाके में ऐड कर लेते हैं जो साहिल के दरा करीब है। एक तो गई कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन साइट में जितना वेस्ट मटेरियल निकलता है, दैट इज एग्रीड टू गो टू द ओशन। ठीक है। फार्म, जो बड़े बड़े फार्म हाउसेस होते हैं या खेत होते हैं, वहां जो भी एक्टिविटी होती है, व्हाटएवर एक्टिविटी इज देयर इन फार्म हाउस, either that is animal manure, either that is bird manure, human manure, or fertilizer, or chemicals, whatsoever has been used in field, खेतों में जो भी चीज इस्तेमाल हुई है, at last उसने कहाँ जाना है, that have to reach to the ocean by surface runoff। बारिश ज्यादा हुई, उसके साथ वो सारे केमिकल्स बहकर जो है ना ओशियन तक पहुंच जाते हैं। और ओशियन के लिए किस रीजन में पहुंच जाएगी, जितने भी पॉल्यूटेंट टेरेस्ट्रियल रीजन से जाते हैं, वो किस जगह में पहुंचेंगे सबसे पहले, एस्टोरियल रीजन में पहुंचेंगे सबसे पहले। तो एस्टोरियल रीजन के करीब क्या होता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, अब नाउ इट वाज क्लोज टू द बीच एंड क्लोज सरफेस बेड, ऑक्सीजन डिप्लीटेड जोन, तो वहां पर क्या होगा, दैट इज कॉल्ड रेड टाइड। अब वहां पर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो गए, पॉल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, क्योंकि स्लोली प्रोसेस हो रहा होता है, जिसकी वजह से वहां ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। और जो है ना जब ये एनारोबिक कंडीशन हो गए, ऑक्सीजन डिप्लीट हो गया, सनलाइट पेनिट्रेट अब नहीं हो रही है, क्योंकि पॉल्यूटेंट्स का पूरा एक जाल अगर बिछा हुआ है, ऑक्सीजन डिप्लीटेड जोन, सेडिमेंटेशन एंड एल्गी, overgrowth, reduce sunlight, kill beneficial seagrasses, use up of oxygen and degrade habitat। अब जितने भी पॉल्यूटेंट, हम सीधी सी यहाँ पर एक चीज बताना चाह रहे हैं, जितने भी पॉल्यूटेंट को पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, समंदर में पहुंच गए। समंदर में किस रीजन में पहुंच गए, जो साहिली इलाके हैं वहां पर पहुंच गए। जब इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, न्यूट्रिएंट्स की जो
टेरेस्ट्रियल सरफेस से आ रहे हैं तो वहां पर एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एलगी हो गई और नीचे जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं साहली इलाके में उन सब की डेथ हो जाए। क्यों? वहां ऑक्सीजन कम हो गई, सनलाइट वहां पर पेनिट्रेट नहीं हो गई और टॉक्सिक मेटल्स भी चले गए। तो उसको फंसा होगा इस जोन को जहां पर ऑक्सीजन इस कैफियत की वजह से, डिप्लीटेड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की वजह से और सनलाइट नॉन पेनिट्रेशन की वजह से जो जोन जनरेट हुआ है उसको हम कहते हैं रेड टाइप। That is called red tide. Excess nitrogen causes explosive growth of toxic microscopic algae, poisoning fish and marine mammals. वो पॉल्यूशन जो वहां जहां पर डंप हो गए, अब वहां पर एक्सेसिव ग्रोथ होगी एलगी की और जितना टॉक्सिक मटेरियल है वो अल्गल मास में मौजूद है। अब उसी एलगी को वहां मौजूद फिश ने खाना है, क्रैब्स ने खाना है, दूसरे जो वहां एनिमल्स है उन्होंने उस ग्रास को यूज करना है, तो दैट कंटेन टॉक्सिक मटेरियल। तो उस टॉक्सिसिटी की वजह से वहां जितने एनिमल्स हैं डेथ होगी और दूसरी कुछ जो प्लांट ग्रो हो रहे हैं उसकी डेथ, लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लिमिटेशन ऑफ सनलाइट उसकी वजह से हो। तो उन टॉक्सिक सेगमेंट में क्या चीज होती है? टॉक्सिक सेगमेंट केमिकल्स एंड टॉक्सिक मेटल्स कंटामिनेट shellfish beds, kill spawning fish and accumulates in the tissue of the bottom feeder. Tissues of bottom feeder. तो सरफेस से जितना भी टॉक्सिक मटेरियल टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट से जाता है वो किसी न किसी तरह समंदर में पहुंच जाता है। समंदर में उस रीजन में पहुंच जाता है जो जहां पर साहिली इलाके हैं, एस्चुरियन रीजन है। And we have established this statement that estuarine region is the most productive region for life due to excess amount of nutrients. When toxic materials are excessive and going to the estuarine regions, what happens? These toxic metals, first they will kill whatsoever is there. Some कुछ की concentration कम होगी, उनका impact कम होगा, लेकिन जिन chemicals की concentration ज्यादा है and they are going to be added continuously to the ocean, मुसलसल वो समंदर में जब दाखिल हो रहे हो तो वहां पर जो फिश है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको किल करेंगे, जो ग्रास और जो एनिमल्स वहां पर ग्रो हो रहे हैं उनके टिश्यूज में एक्युमुलेट होंगे, जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं उनके टिश्यूज में एक्युमुलेट होंगे, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं उनके ऑर्गन्स में एक्युमुलेट होंगे और उनको जब दूसरे एनिमल्स खाएंगे तो उसके जिस्म में भी वही टॉक्सिक मेटल दाखिल होंगे और यही सी फूड जब निकाल कर इंसान इस्तेमाल करेगा तो वो टॉक्सिक मेटल्स फिश के थ्रू ह्यूमन में भी ट्रांसफर होंगे। सपोज लीड है, मरकरी है, जो भी हैवी मेटल है वो वहां एनिमल्स के मांस में एक्युमुलेट होगा और उस मांस से वो ह्यूमन मांस में ट्रांसफर होगा फूड चेन के थ्रू। इसके अलावा ओशियन को पॉल्यूशन करने वाला जो है वो एक ये चीज है वो है ऑयल टैंकर्स जो समुद्र के अंदर घूमते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ऑयल को वन प्लेस से दूसरे प्लेस में, उसके थ्रू जो पॉल्यूशन जाती है वो भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करती है। और उसके बाद जब आप साहिली इलाके से दूर चले जाते हैं तो वहां पर वो दैट इज हेल्दी जोन। Healthy zone, clear oxygen, rich water, promote growth of plankton and seagrass and support fish. जब आप ओशियन से आगे की तरफ चले जाते हैं तो डेप्थ वाले जोन में जिसे हम ओशियनिक जोन कहते हैं वहां पर हेल्दी एनवायरनमेंट मौजूद है। लेकिन अगर हम साहिली इलाके की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है, इंडस्ट्रीज हो गई, सिटीज हो गई, विलेजेस हो गई, कंस्ट्रक्शन साइट हो गई और खेत हो गई, इन सब से जितना भी टॉक्सिक मेटल
जब ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो सब खत्म साहिल इलाके में कोस्टल रीजन में पहुंच जाता है और कोस्टल रीजन में पहुंचने के बाद वहां की जितनी भी लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर देता है, उनकी डेथ हो जाती है। फिश क्रेब व्हाटएवर क्रिएचर इज दिस दैट विल डाई और वहां पर जो ग्रो करेंगे वो टॉक्सिक फंजाई और एल्गी ग्रो करेंगे। अगर कुछ भी मटेरियल ना हो तो मेरी लाइफ को वही चीज यूज करनी होगी, इस्तेमाल करनी होगी, ठीक है। जब वो एक्यूमुलेट खा लेंगे तो क्या होगा, वही टॉक्सिक मटेरियल जो एनवायरनमेंट से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट से समुद्र में चला गया था वो पहले एल्गी में एक्यूमुलेट हुआ, एल्गी को मछली ने इस्तेमाल किया, मछली में एक्यूमुलेट हुआ, मछली जब इंसान खाता है तो इंसान में एक्यूमुलेट होकर मुख्तलिफ किस्म के न्यूरॉन्स जनरेट करता है। तो इसको हम यहाँ तक रखते हैं। इसमें अगर कोई बात आपने पूछनी है, मजीद कोई चीज ऐड कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं और मजीद आप जो है फर्दर इस पर डिबेट की जा सकती है। कोस्टल वाटर पॉल्यूशन ये आज का टाइटल टॉपिक, ठीक है। इसके बाद आपको लैब परफॉर्म करनी है। लैब कितनी हो गई, एक हो गई, दो हो गई, ये तीसरी होनी। दूसरी वो आप लोगों ने अपनी सूची से लिखी है बिकॉज़ वी यू हैव लिमिटेड टाइम एंड कंफर्ट टाइम। आप लोगों का टाइम बहुत था, लगभग एक हफ्ता गुजरा है ना, उसमें जो भी मटेरियल आप लोगों का उसमें आपको ले हुआ हुआ था, फिर आप लोगों ने सैंपल मैनिपुलेट कर दिया, उसमें से कुछ प्रोसेस नहीं किया है, कुछ ने मस्ती करके नहीं किया, ठीक है। तो मैं थर्ड को डेमोंस्ट्रेट कर रहा हूँ आज और थर्ड में जो है ना अगर मुझे दे दे कर दे हमने क्या चीज डिबेट करनी है और क्या करना है क्या नहीं करना है। आप